चलो dearest friends, in today's class we will discuss one of the great psychologists. I hope you have heard about his name. Name is Sigmund Freud. Sigmund Freud basically belonged to Austria. Austrian society was so much conventional society where the discussion about the sexuality and more things are very complex. That society was like Indian society. जैसे भारत में आज आप बहुत कन्वेंशनल सोसाइटी है, आज भी आप छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, मंदिर एक्सेट्रा जैसे इश्यूज के ऊपर आप अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स घुमाते हैं, आप अपना पूरा फ्यूचर मूव कराते हैं. सो ऑस्ट्रिया की सोसाइटी में भी ऐसे बहुत कन्वेंशनल सोसाइटी थी, बहुत सारी रिचुअल्स परंपराएं वहां पर अवेलेबल थी, जिसके वजह से वहां के साइकोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत यूनिक से फीलिंग्स डेवलप होती थी, जो इंडिया में बहुत सारा देखने को मिलेगा. सो विल डिस्कस डिटेल अबाउट द फ्राइड इन दिस क्लास. और जैसे जैसे हम इस क्लास में पढ़ते जाएंगे, वी विल ट्राई टू solve the so many questions which has been asked in the topic of personality and in the others topic also, maybe because Freud एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि साइकोपैथोलॉजी में भी आते हैं, साइकोथेरेपी में भी आते हैं, और इसके अलावा पर्सनैलिटी जैसे टॉपिक में भी सिगमंड फ्राइड को डिटेल में पढ़ाया जाता, समझाया जाता. तो हम लोग फ्राइड को समझेंगे और फ्राइड को बेसिकली वी विल एंजॉय इन दिस क्लास, राइट. सो द फर्स्ट थिंग, एज पर माय हैबिट, आप जानते हो कि मैं प्लेन बोर्ड पर लिखना पसंद करता हूं रेदर देन पीपीटी फॉर्म्स. सो दैट हियर वी विल गो टू द प्लेन बोर्ड्स रेदर देन पीपीटी, एंड लास्ट में मैं आपको इसके पीपीटी नोट्स भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. इवन जितने भी मैंने साइकोलॉजिस्ट पढ़ाया है या आगे भी पढ़ाऊंगा, so I'll provide you the notes of the each and every psychologist in the descriptions box. You can download from there and you can also write your reviews, experience, and share and subscribes, whatever that is a part of marketing, as you know that it is not my habit. So my habit is अगर दो चार को benefit हो रहा, that is sufficient. Go to the Sigmund Freud. Basically Sigmund Freud, we are going to discuss Freud. Basically Sigmund Freud belonged to Austria and he has treated one of the very popular disease, that name is hysteria. Getting? So what is hysteria? Hysteria, I'll write also, right? Freud. Getting? So here Freud. Freud belonged to Austria, right? Belong to Austria. Don't write Australia. Australia is in the separate place and Austria is into the Europe. So Austria, and he has treated basically the disease hysteria. So you can ask me, what is hysteria? Hysteria is the disease in which when person is mentally sexually active but biologically it is not possible. As you know that when we are in the age of teenage, when we are in the age of teenage, in the teenage basically human start to doing fantasy, because in the boy they have started to releasing some hormones, we call them to the testosterone, right? So testosterone's hormone started to release by the boys, and even females or girls started to also release the hormone of estrogens. So that these hormones started to doing opposite gender attractions, means मेल को फीमेल पसंद आएगा, फीमेल को मेल पसंद आता है. ये टीनेज मीन्स 13 ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है. while you are in the 13 years, that opposite gender attractions automatically come. This is not of the any other reasons, just the reason is biological reasons. और बायोलॉजी के नियम को डिनाई नहीं कर सकते. अपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस तो हो गया, बट
हमारी सोसाइटी बहुत एक्टिव है, अलर्ट है। हर घर में भाई होंगे, माता होंगे, पिता होंगे, इवन खुद बच्चा भी जैसे अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होगा तो उसके सारे घर के लोग एक कन्वेंशनल सोसाइटी में अलर्ट रहेंगे, कभी किसी से बात ना कर ले, वो कहीं अपनी डिजायर ग्रेटिफिकेशन ना कर ले, या फिर वो किसी तरह से एक दूसरे से मिल ना ले। सेम थिंग वाज हैपनिंग इनटू ऑस्ट्रिया आल्सो। ऑस्ट्रिया में स्कूल में, क्योंकि देखो लव का एक रूल है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो आपके पास में रहेगा वही उसी से आपको प्रेम होता है। जैसे हमारे घर में सबसे पहले हमारे नेबर्स के लोग या आसपास में रहते हैं, तो हमारा इमोशंस, हमारा प्रेम सबसे पहले किससे हो सकता है? हमारे नेबर्स के किसी मेल या फीमेल से हो सकता है। दूसरा, हमारे घर में जो पास में आ रहा है, अगेन द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सो जो हमारे घर में पास में आ रहा है, जल्दी आ रहा है, मे बी टीचर हो सकता है, मे बी कोई जानने वाला, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, हमें उसमें से हमारा कोई दोस्त बन सकता है। या फिर हम एकेडमिक्स में रहते हैं, स्कूल्स में, बिकॉज वी स्पेंड मोर देन 5 to 6 आवर एट द स्कूल। सो कोई भी जीवन साथी या दोस्त, फ्रेंड्स हम कहाँ से बना लेते हैं? स्कूल से, कॉलेज से बनाते हैं। और इसका बड़ा सिंपल रूल है, द रूल इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। मीन्स हमारा दोस्त कहां से बनता है? जो हमारे पास में रहता है। तो फ्रॉइड के समय में ऑस्ट्रिया में कन्वेंशनल सोसाइटी, वहां मेल फीमेल दोनों अपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस, बट सोसाइटी इज नॉट परमिटिंग टू मीट देम। इवन कोई भी सोसाइटी परमिट नहीं करती। रीजन बीइंग्स हार्मोन्स इन्फ्लुएंस टू थिंक इरेशनल। जब हार्मोन हमारे शरीर पे हावी होता है, सो हम इरेशनल हो जाते, इलॉजिकल हो जाते हैं, गलत सोचना शुरू करते हैं। इवन हमारी सोचने की क्षमता डिक्लाइन कर जाती है। टीनेज में सब कुछ मुमकिन लगता है, राइट? इन दिस सेंस बेसिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल, रीजंस बीइंग्स वी परसीव दैट कि यस, हमसे हर चीज पॉसिबल है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, बच्चे बच्चियां रात में देर तक जगते रहते, और उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय बहुत सारे इंटरनेट कंटेंट नहीं थे जिससे कि वो अपने डिजायर्स को पूरा करें। सो अब होता क्या था? मींस दे हैव अपोजिट जेंडर अट्रैक्शंस, बट द सोसाइटी इज नॉट परमिटिंग। अब मिल तो नहीं पाते एक दूसरे से। इन दैट केस इवन दे स्टार्ट टू डूइंग फैंटेसी। अब एक दूसरे के साथ में कल्पना करते हैं। कौन? मेल एंड फीमेल, मींस गर्ल्स एंड बॉयज स्टार्ट टू डूइंग फैंटेसी कि काश मैं अपने अपोजिट पार्टनर के साथ में कॉफी पीता, डेटिंग करता, चाय पीता, मिलता, बातें करता, सो बहुत मजा आता। बट ऑल दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग, घर में भाई बहन हर कोई आपका मोबाइल फोन, एवरीथिंग इज चेकिंग, एवरीवन इज अलर्ट। कहते हैं ना, एक एडोलसेंस बच्चे को संभालना, और जहां पर सेक्सुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो, सेक्सुअलिटी को इज्जत से जोड़ी जाती। और बड़ा अजीब सा भी लगता है मुझे कई बार, इज्जत अगर जाती है तो सिर्फ फीमेल की, मेल की नहीं। सो विच इज अगेन रॉन्ग, राइट? ये तो खैर फिर से वही कन्वेंशनल एक स्टीरियोटाइप बना रखा। इफ अगर कुछ गलत हुआ तो दोनों की इज्जत जानी चाहिए, बट इज्जत किसकी गई? ओनली मेल। सो देयर इज अगेन सर्टेन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल एरर। सो चाइल्ड स्टार्ट टू डूइंग फैंटेसी, एडोलसेंस स्टेज में फैंटेसी कर रहा, एंड दे स्टार्ट टू ड्रीमिंग, एंड अब वो बड़े अच्छे अच्छे सपने देख रहा है, बट ऑल दीज थिंग्स इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग सोसाइटी वाज कन्वेंशनल। और फ्रॉइड कहते थे जिस चीज को जितना रोकोगे, जितना दबाओगे, वो उतना ही बड़ा होता जाता। जैसे हमारे घर वाले कहते हैं, बेटे उस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल रखा हुआ है, प्लीज डोंट टच। चाइल्ड के लिए ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती। सेम एज हमारी सोसाइटी में सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दे दी गई। इंपैक्ट ऑफ दिस बच्चा उसको जानने की गर्नेस हमेशा रहता है। इवन आप जानते हो, बहुत रिसर्चेस प्रूव करती हैं कि ह्यूमन के माइंड्स में आफ्टर एवरी 8 सेकेंड द सेक्सुअल थॉट ऑटोमेटिकली हिट। हर किसी के मन के अंदर हर 8-9 सेकेंड के अंदर सेक्सुअल थॉट हिट करता रहता है, राइट? आई विल टेल यू व्हाई, बट द थिंग्स
फर्स्ट इज हियर। तो ऑस्ट्रिया में हुआ, ऑस्ट्रिया में टीनेज बच्चों को हिस्टीरिया हुआ। हिस्टीरिया मींस व्हेन पर्सन इज फिजिकली नॉट सेक्सुअली एक्टिव बट मेंटली एक्टिव। जैसे मन में सेक्सुअल थॉट तो आ रहे हैं बट शरीर अलाउ तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारे मैरिज नॉर्म्स हैं और हमारे यहाँ मैरिज के बिफोर सेक्स करना इलीगल माना जाता है, अनएथिकल भी माना जाता है, राइट। तो और दूसरा, अब वो बच्चे फैंटेसी कर रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं। ड्यू टू दिस दे वर नॉट सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड दे स्टार्ट टू फीलिंग एंजाइटी, they start to feeling anxiety. So due to this anxiety, due to the anxiety, अब उस एंजाइटी की वजह से उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो एंजाइटी किससे? फियर से आया। एंड एंजाइटी बेसिकली 3 टाइप्स आर देयर अकॉर्डिंग टू फ्रायड। फर्स्ट इज रियल एंजाइटी, and second is moral anxiety, and third is neurotic anxiety. So what is the real anxiety? Real anxiety means the anxiety which produced due to real circumstances. जैसे आपके सामने फायर रखा है, आपके सामने आग जल रही है, आपके सामने गरीबी है और तुरंत खाना खाना, तो रियल एंजाइटी पैदा होगी। एंड न्यूरोटिक एंजाइटी मीन्स एंजाइटी प्रोड्यूस फ्रॉम द पास्ट इवेंट। जैसे मुझे ये चीज कर लेना चाहिए था, लाइक आफ्टर द एग्जाम्स कई बच्चों को फील होता है काश मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। कई लोगों का ओवर एज हो जाने के बाद सोचते हैं कि काश मैं उस समय अपने बारे में अच्छे से मेहनत कर लिया होता, सोच पाया होता, तो शायद मेरी आज ये कंडीशन नहीं होती। देन न्यूरोटिक एंजाइटी, एंजाइटी विच इज परसिस्टेंट, एंजाइटी विच स्टे विद लॉन्ग टाइम्स टू समवन एल्स। किसी के साथ में लंबे समय तक एंजाइटी होती रहे। बहुत लोगों के जीवन में जब जरूरतें पूरी नहीं हो पाती तो वो चिंता लंबे समय तक बनती रहती है। इन द टीनेज ऑफ ऑस्ट्रिया बेसिकली, अब उस समय बच्चे आपस में फैंटेसी तो कर रहे हैं, adolescents were doing fantasy but they were not actually fulfilled to them. In that situation क्या होगा? वो एंजाइटी विल बी persistent with them और वो लगातार बनी रहेगी। That continuous anxiety brings certain type of changes inside of the body and outside of the body. Facial expression will change, सकल देवदास उदास की तरह हो जाएगा। And third, second changes, second क्या होगा? बॉडी के अंदर the hormonal system will change, several types of disease and disorders will be arises. Even that neurotic anxiety later converted into the hysteria. तो फ्रायड के पास कोई हिस्टीरिया का पेशेंट गया, बट फ्रायड ने देखा उसका बीपी, पल्स रेट, हार्ट बीट सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है, फिर क्यों उसको ट्रीटमेंट करी? बिकॉज वो तो साइकोलॉजिस्ट था नहीं, ही वाज बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट। तो उसने देखा कि इसमें कुछ और ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम्स को बेसिकली डायग्नोज करता था विद द हेल्प ऑफ psychoanalysis, with the help of psychoanalysis. Psychoanalysis was basically a therapy. We call them the PPT therapy, psychoanalytic psychotherapy. In this therapy basically Freud treat the hysteria patient, right? Initially he have taken many studies, even I have mentioned the name of the some like Henry O, Anna O, many more peoples whom he has studied that I have mentioned into the notes. You need to read them, right? That is the only reading portions. Do not go to that. You need to understand the concept of Freud. तो पीपीटी थेरेपी में हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट, और हिस्टीरिया का ट्रीटमेंट बड़ा मजेदार। क्यों? क्योंकि फ्रायड बेसिकली आपकी मन का एनालिसिस करता था। Because Freud believes whatever is in our conscious desire, that is actually not source to understand the human personality. Whatever is in our unconscious, that is a source to understand to self. अभी देखो कुछ लोग राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में पॉलिटिक्स किए, कि उनके कॉन्शियस में तो राम था, बट अनकॉन्शियस में क्या था?
governance, government formations. The people understand. समझ लिया लोगों ने, और बाद में वहां के लोगों ने उनको रिप्लाई भी कर दिया, अब उससे नाराज हो गए. सो ह्यूमन के अनकॉन्शियस में कई बार जो चीजें होती हैं वो कॉन्शियस में नहीं होती. एंड मेनी रिसर्चेस प्रूव दैट अनकॉन्शियस, सपोज हियर इज अनकॉन्शियस, कई रिसर्चेस प्रूव करते हैं अनकॉन्शियस इज 9 times bigger than the conscious. What? Unconscious is bigger than the conscious. Actual boss of our body is the unconscious, right? And conscious is just a gatekeeper, just a gatekeeper. It's a very small things, बहुत छोटी चीज होती है, बहुत छोटा. The honor of house is a basically honor of house is who? That is our unconscious. आप अक्सर लोगों से शिकायत सुनते होंगे कि मैं जो चाहता हूं वो मेरे जीवन में नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो चाहते हैं वो कॉन्शियस में है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनकॉन्शियसली आप उसको नहीं चाहते. गेटिंग? जैसे हम फियर को अपने अनकॉन्शियस में इतना ज्यादा रखते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है, हमें हर चीज से डर लगता है. If people do not have fear, people will never indulge toward the religions. किसान खेती करता था, वो रिलीजन की तरफ गया, इसलिए भारत के गंगा के मैदान में सारे धर्म पैदा हुए. राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, Guru Nanak, all the peoples. Then industrialization comes. Industrializations आया तो फिर से that the peoples move toward the religions, क्योंकि there is a risk. जहां रिस्क होगा वहां फियर होगा, जहां फियर होगा वहां रिलीजन होगा. And religion is a big source to understand the human behavior. सो हमारे अनकॉन्शियस की चीजें हमारे जीवन पे ज्यादा असर डालती है, बिकॉज अनकॉन्शियस इज ऑनर. अब आप अपने घर में इमेजिन करो, अनकॉन्शियस, दिस इज आवर कॉन्शियस. आप इमेजिन करके देखो कि आप, कॉन्शियस मीन्स इंटेलेक्ट, आपका जितनी समझ है, पढ़ाई लिखाई, वो सब कहां पर है? कॉन्शियस में है, इंटेलेक्ट में है, बुद्धि में है. एवरीथिंग इज इन लाइक दिस पार्ट. जितनी आपने लर्निंग किताबें आज तक पढ़ी वो सब कॉन्शियस में. हाँ, कुछ सो जाती हैं तो वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं, जिसको स्टोर करके हम रख लेते हैं. होश में रहना, इफ यू आर अवेयर, सो दैट इज व्हाट? कॉन्शियस. अवेयरनेस इज कॉन्शियस. पूरे सालों साल पढ़ाई करा, पूरे सालों साल किसी चीज के लिए तपस्या करी, वो सब कॉन्शियस का पार्ट. अब वो भी क्या है? गेट कीपर, घर का दरवान, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड. अब बताओ, घर खरीदना है, पूरी बॉडी के ऊपर आप अपना हुक्म चलाना चाह रहे हो, घर का मालिक बनना है, तो गेट कीपर से दोस्ती करके थोड़ी ना घर का मालिक बन जाओगे. घर का मालिक बनने के लिए घर के मालिक से दोस्ती करनी पड़ेगी. सो अनकॉन्शियस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देन द कॉन्शियस, एंड इट इज 9 times बिगर. 9 times, 9 गुना बड़ा है. आपने देखा होगा कई बड़े बड़े साइंटिस्ट के विकेट गिर गए. राजेंद्र पचौरी, नोबेल लॉरिएट, उनके ऑफिस असिस्टेंट ने उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगाए. एक कोई तहलका संपादक हुआ करते थे, उनके ऑफिस असिस्टेंट उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगाए. क्यों? इंटेलेक्ट बहुत है, वो छोटा सा है सर. जब अनकॉन्शियस हैविली एक्टिव हो गया मालिक घर का, फिर गेटमैन का थोड़ी ना कुछ चलता है. सो गेटमैन्स रोल इज वेरी मच लेस
in that situation. So most important part is what? Work on unconscious. Sigmund Freud was the first psychologist who started to work on the unconscious. और अनकॉन्शियस को जब उसने ओपन किया तो बहुत सारे उसमें फिनोमिना उसको पता चले. और मोस्ट इंटरेस्टिंग, व्हेन ही हैज ओपन्ड, he generalized that phenomena. He said this phenomena experienced by everyone. उसके स्टूडेंट तक नाराज हो गए, बोले कि सर आप ही कैसे बोल सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी के रूल्स ज्यादातर जनरलाइज नहीं करते लोग. साइकोलॉजिस्ट कहते मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, या जैसे भी किया मैंने देखा, अब आप देख पाओगे कोई गारंटी नहीं भाई. इसलिए साइकोलॉजी नॉर्मेटिव है. सो सिगमंड फ्रॉइड्स वर्क फर्स्ट ऑन द अनकॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस के अंदर मोस्टली प्लेजर की चीजें छुपी होती है. इसी को बेस बना करके उसने अपनी थ्योरी दी. और आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता. मेरा बहुत सारी आपने स्टेटमेंट सुने होंगे कि जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो अक्सर मुझे उसी समय मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क याद आता है. रीजन जानते हो? अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस में बहुत सारी प्लेजर की चीजें छुपी है, और कॉन्शियस होश में रहना इज नॉट इजी टास्क. इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम, सिविल सर्विस, आईएएस का एग्जाम. मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे अराउंड कोचिंग में भी पढ़ने वाले 40% बच्चे तो अपना पैसा और टाइम वेस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भी सिविल्स वाले भी क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाते, आ ही नहीं पाता. दिमाग में क्या, बिहेवियर में नहीं आता, दिखता ही नहीं, सिर्फ वो टाइम पास, कॉलेज जैसा जीवन जीते हैं. सिविल्स इज नॉट अ कॉलेज लाइफ. जस्ट सी, एक्चुअल में उन्होंने 20-22 साल तक किसके सहारे जीवन जिया? अनकॉन्शियस, प्लेजर. क्योंकि अनकॉन्शियस में कई चीजें छुपी होती जिसमें एक है प्लेजर. सो प्लेजर इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच इज इनटू अनकॉन्शियस. 22 साल तक मन किया आइसक्रीम खा लिया, मन किया चॉकलेट खा लिया, मन किया मूवी देख लिया, दोस्त के साथ घूमने के लिए, और अचानक आप जब वॉक करना शुरू करते हैं टुवर्ड योर awareness, conscious, because civil service exam is all about the awareness. होश में रहते हो कि नहीं? आप कितना भी पढ़ के जाओ, लेकिन एग्जाम के पेपर के समय आप होश में नहीं हो. करंट को कनेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है. आप कितना भी बीएमए में मार्क्स लेके आइए, लेकिन जिस ईयर आप जा रहे हो उस ईयर की घटनाओं से आप अवेयर नहीं है, तो सिविल्स आपके लिए नहीं बना. So work on, when they start to working on the awareness, feel very difficult. फिर उनको मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, ये चाहिए, पढ़ने मन नहीं लगता, किताब समझ में नहीं आता. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो पहली बार अपनी अवेयरनेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं. बिफोर दैट दे वर एंजॉयिंग विद प्लेजर सीकिंग, लस्ट सीकिंग बिहेवियर. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अनकॉन्शियस, Freud has given therapy, given treatments, and described about the disease and disorders, and well explained about the human personality. Initially, he said that our personality have a structure. हमारा व्यक्तित्व बनता कैसे है? सो उसने पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट में 3 बड़ी बातें बताई. राइट? 3 things he has mentioned well in his personality theory. First thing, how our personality structure means, हमारी पर्सनैलिटी की संरचना कैसी होती है. So he described that the first thing, there is a topography. In the topography,
he mentioned that in human they have id. Id, human have basically id. What is the meaning of id at here? It means principle of pleasure. ह्यूमन के मन में प्लेजर होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर. इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर. सो वेन एवर पर्सन इज बिहेविंग विद इड, इड का सरल भाषा में हिंदुस्तान में कहें तो डिजायर बोला जाता है. ह्यूमन हैव लॉट ऑफ डिजायर. बेसिकली डिजायर्स कैन क्लासिफाई टू बायोलॉजिकल डिजायर्स एंड साइकोलॉजिकल डिजायर्स or social desires. Psychological or social desires, these desires can be classified. Biological desires broadly are four. One is hunger. Hunger is biological desire. भूख लग गई फिर आप देखो ह्यूमन को खाना चाहिए. थ्रस्ट, खाने में प्यास में भी बहुत कुछ ढूंढता है, अपना वो प्लेजर ढूंढता है, क्या पी लूं जिससे मजा आ जाए. और दिल्ली जैसे शहर में तो कई बार फ्री में मिल जाता है, एक के साथ एक फ्री. और उसके अलावा खाने में आप देखोगे कई शहरों में जब आप 1 से 2 किलोमीटर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा खाने के लिए दिख जाएगा, आपका मन कर ही जाएगा खाने के लिए. सो दैट इज हंगर. तो इंसान अपने खाने के लिए कितना टेस्टीफुल खाना चाहता है. और आप जानते हो जो जुबान को अच्छा लगता है वो शरीर को अच्छा नहीं लगता. टेस्ट में जो चीज खाने में अच्छा है उसमें न्यूट्रिशन होगा कोई गारंटी नहीं, और जिसमें न्यूट्रिशन होगा वो टेस्ट होगा कोई गारंटी नहीं. देन हियर इज सेक्स. सेक्स इज द अदर बायोलॉजिकल नीड्स एंड स्लीप इज अगेन नीड. कितने कंफर्ट बेड या बेडरूम में सोते हैं, एसी पंखा सब चला के, दैट इज अ बायोलॉजिकल नीड्स. But Freud mainly focused about the sexual desire. And other desires like achievements, become ISQ, become something that is a pleasure. And then approval. You want to approve you are a genius, you are from good family, कुछ भी prove करना चाहते हो. It is depending on you. And then you have just affiliation. Affiliation is other needs. Other is our aggression, and we may be others also. तो हमारे जो सोशल नीड्स हैं वो सेकेंडरी हैं. बायोलॉजिकल नीड्स आर प्राइमरी. फ्रायड मेनली फोकस ऑन द वन ऑफ द बायोलॉजिकल नीड्स, प्राइमरी नीड्स, दैट इज सेक्स. अब जब ह्यूमन के मन में डिजायर तो पैदा हो गई, बट उसके मन में एक जानते हो क्या है? सुपर ईगो. सुपर ईगो मीन्स व्हाट? सुपर ईगो मीन्स फियर. द पर्सन हैव व्हाट? सुपर ईगो. सुपर ईगो मीन्स फियर. दैट सुपर ईगो मीन्स फियर. जैसे एक अपने एग्जांपल से लेता हूं मैं. यूजुअली मैं सड़क पे स्ट्रीट पे खाना नहीं खाता, शायद मुझे कोई देखा होगा. इसके पीछे स्टोरी है कि कुछ समय पहले, आज से लगभग 10-12 साल पहले, तो मुझे एक बच्चा मिला और बोला सर मॉर्निंग, और मैं उस समय छोले भटूरे स्ट्रीट पर खा रहा था. बहुत बिजी मार्केट थी तो मुझे हेसिटेशन लगा, बिकॉज मैं स्ट्रीट फूड को बहुत क्रिटिसाइज करता था. इवन टेस्टी होता है बट हाइजीन वाइज मैं उसको क्रिटिसाइज करता था. तो खैर उस दिन मैंने खाया, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगा. फ्रॉम नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड किया कि अभी स्ट्रीट पे खाना नहीं खाएंगे, बट खाता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं खाता हूं, अभी भी खाता हूं. अब बट फियर किस बात का? किसी ने देख लिया तो, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द डेली आई हैव टीच, राइट? आई हैव गिवन द क्लासेस फॉर सेवरल सेक्शंस ऑफ द नॉट ओनली द आईएएस स्टूडेंट. तो मुझे डर रहता है, मेरे मन में एक फियर रहता है, कोई देख लिया तो इस वजह से मैं स्ट्रीट पर खाना नहीं खाता. So Freud said that person have sexuality but cannot satisfy, right? क्यों? क्योंकि उसके मन में फियर है, इज्जत, जिसको हम लोग सम्मान कहते हैं, जिसको हम लोग रेपो कहते हैं. मेरा इज्जत चली जाएगी.
मेरा एथिक्स नहीं अलाउ करता, दैट इज सुपर ईगो, दैट इज फॉर्म ड्यू टू द मेमोरी, रघुकुल री सदा चली आई। वो मेमोरीज जो वैल्यूज बनाए जाते हैं उससे आती है, बिलीफ से आती है। अब इन दोनों के बीच में बड़ा, दिस इज द बेसिकली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ethics, principle of moral, you can say not ethics, moral. It follow the principle of moral. What follow? Superego. Morality, you can say morality. ये morality के principle पर based है. Superego, fear छुपा उसके अंदर. And it is related with the one part of brain, we call them hypothalamus. हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारा प्लेजर छुपा है। एंड सुपर ईगो मीन्स एमेगडाला, एमेगडाला, गेटिंग? सो अब एक मन कह रहा खा लूं, सड़क पे खा लूं, बट दूसरा मन क्या कह रहा, नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो, इज्जत चली गई तो। इसके बीच का रास्ता जो निकालता, दैट इज ईगो। सो व्हाट इज ईगो? ईगो इज जस्ट मीडिएटर बिटवीन द इड एंड सुपर ईगो, बीच में। इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी कहा जाता, क्योंकि वास्तविकता को देखता है। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, वास्तविकता को देखेगा क्या हो सकता है। जैसे मैं स्ट्रीट फूड खाता हूं, लेके गाड़ी में बैठ गया, आराम से खा लिया, कोई देख भी नहीं रहा, खाना भी हो गया, आराम से शीशा ऊपर करो, खा जाओ। सो दैट इज बेसिकली id, ego and super ego. These are related. हाँ, this is related with our forebrain, जिसको हम लोग बोल सकते हैं frontal lobe. It is related with the frontal lobe. It is associated with the frontal lobe. I wish you are connecting my points. So this is the first part, and the second part of it is, that is dynamisms. Dynamisms is here. So human have certain things which is associated with the personality, but they are into little bit dynamisms. अब मैं उसके नाम भी लिख सकता हूं यहां पर, और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक करके, सो प्लीज आप देखें। सो दैट डायनेमिज्म्स आर बेसिकली conscious, and second is basically our subconscious. Second is basically subconscious, and third is all about unconscious. So as I mentioned first, conscious means awareness. And subconscious is all about the memories. In awareness, or our intellect is involved, and all types of memories are into the basically our subconscious. And in unconscious, mostly pleasurable things are there. Pleasure, you can say lust, you can say joy, sexuality, fear, etc. All these things are involved inside of the unconscious. As I mentioned, इसी चीज को हम ऐसे ग्राफ में भी बना सकते हैं। 3, this is a conscious, this is the subconscious, and this is our unconscious. This is our unconscious. Unconscious is bigger than the subconscious. Unconscious is bigger than the subconscious, and subconscious is bigger than the unconscious. So which one is smallest? Conscious, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, उस पर भी गुमान, घमंड, अहंकार कई लोगों का तोड़ा है।
इतिहास गवाह रहा है। किसी के कॉन्शियस में नहीं होना चाहिए कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। सर, ये नहीं होना चाहिए। द पीपल लविंग एंड रिस्पेक्टिंग यू, इट्स ओके, बट द थिंग्स डू नॉट सेड आई एम नॉट अ बायोलॉजिकल, मे बी। सर, ये नहीं होना चाहिए, राइट? सो देर इज अनकॉन, एंड दिस इज कनेक्टेड विद प्लेजर थिंग्स अनकॉन्शियस में छुपी, इसीलिए इड, इड कहां पर है? हमारे अनकॉन्शियस में। एंड व्हाट अबाउट द सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस में क्या चीजें छुपी है? फियर। किस चीज का? मोरल की बात है, मोरल मेमोरी में होती, वैल्यूज। तो वैल्यूज वाली चीजें यहां पर, इट मींस मोरल मींस कहां पर? सुपर ईगो इज अबाउट द सबकॉन्शियस, सुपर ईगो इज फ्रॉम द सबकॉन्शियस। एंड व्हाट अबाउट इन द कॉन्शियस? कॉन्शियस मींस होश में रहना, अवेयरनेस रहना, जिसको हम लोग ईगो कहते हैं। सो ईगो मींस रियलिटी। समटाइम पीपल बिकम टू मच रियलिस्टिक, कहते हैं अच्छा बड़ा इगोइस्टिक पीपल हो गया है, और भारत या कई जगहों में अहंकार के रूप में देखा जाता है। फ्राइड इसकी बात नहीं करता। ईगो मींस रियलिटी। सो ईगो, सबकॉन्शियस, आई मीन सब, हाँ, ईगो इज रिलेटेड विद द कॉन्शियस, एंड सबकॉन्शियस से रिलेटेड है हमारा सुपर ईगो, एंड अनकॉन्शियस से रिलेटेड है हमारा इड। सो कई बार किसी किसी एग्जाम्स में ये रिलेशन ही पूछ लेता है कि बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी बेसिकली इड, ईगो, सुपर ईगो से बनी है, राइट? एंड कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस, इन्हीं से बनी हुई है। जस्ट दीज आर द 6 बेसिक सोर्सेस बाय विच आवर पर्सनैलिटी फॉर्म्ड, एंड दीज थिंग्स आर इंटररिलेटेड विथ ईच अदर, सबके साथ में जुड़े हुए। गेटिंग इट? तो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर पार्ट मैंने आपको समझा दिया। सेकेंड पार्ट, दैट इज, सेकेंड पार्ट इज how our personality dynamics, how our personality move. So that is basically dynamics of personality. Dynamics of, dynamism is separate. Dynamics of personality means what things in our life that support to run our personality, that support to take the decisions in our life, situations के according. तो आप ये चीजें एक्सपीरियंस करो, जस्ट इमेजिन कि क्या आपके साथ ऐसा होता है। आपकी पर्सनैलिटी में क्या एक, पहली चीज तो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट, व्हाट इज इंस्टिंक्ट? हम बहुत कुछ, हमारी पर्सनैलिटी हमारी इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। इंस्टिंक्ट इज अ बेसिकली बायोलॉजिकल एनर्जी। It do not require any kind of training. It do not require any type of experience. It is a basically basic energy. So it is a biological energy present in all. Present in all. ये सब में पाई जाती है. This energy is present in everyone, including me, you, and everyone. And instinct is a source of behavior. So sources of behavior. So sometime it is a sources of behavior. जैसे हर इंसान का एक स्वभाव होता है, वो बेसिक ऊर्जा है ना। जैसे मैन इंस्टिंक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द वुमेन। मैन का इंस्टिंक्ट वुमेन से अलग होता है, और वो दुनिया की किसी भी वुमेन में देखा जाएगा। मैन का व्हाट इज अल्टीमेट गोल? टू रीच द वुमेन्स बॉडी। अल्टीमेट गोल ही उसका वही, महिला के शरीर तक पहुंचना। सो फॉर दैट चॉकलेट खिलाएगा, बर्गर खिलाएगा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, सब कुछ करेगा। बट फॉर द फीमेल इट इज नॉट। आप जानते हैं ना, फीमेल का इंस्टिंक्ट अलग है। फीमेल नेवर मूव बिहाइंड द मेल। फीमेल की पसंद मेल है ही नहीं। बायोलॉजिकल नीड इज सेपरेट थी, बट उसका जो अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर है वो
डबल एक्स से बना हुआ है। तो ड्यू टू डबल एक्स वो स्टेबल है, शांत है। शायद 99% मेल ही फीमेल से सेक्सुअल अर्ज करता है, कहता आई नीड सेक्स, तो फीमेल रेडी हो जाती है, कई बार प्रेशर में, कई बार खुशी के लिए। वो पहले शायद बहुत 99% नहीं कहती, 99% बिकॉज दे आर स्टेबल। बट व्हाट अबाउट द मेल, दे आर नॉट स्टेबल। तो फीमेल मेल के पीछे नहीं भागती, मेल हमेशा फीमेल के पीछे भाग। फीमेल को दो तीन चीजें पसंद, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हु सेड कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं हर महीने 2-4 केस देखता हूं। सो आई सेड कि भाई तुम क्या कर रहे थे? बोले सर मैं उसको चॉकलेट खिलाया, घुमाया, 3-4 साल 5 साल के रिलेशन से वो ब्रेकअप हो गए, खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? तो मैं उनको समझाता भाई, वुमेन का इसलिए ब्रेकअप कर लेती है, उसकी पहला रीजन है मेन। वुमेन कभी भी मैन के पीछे नहीं भागती, वो उनको पसंद क्या, इफ यू हैव ब्यूटी हैंडसमनेस वो पसंद है, इफ यू हैव सर्टेन एफिशिएंसी, कुछ क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है आप में, आपके पीछे आएंगे। इफ यू हैव एसेट, संपत्ति है, प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया, तो वो आपके पीछे आएंगे। अब इन तीनों में से क्या चीज आप बना सकते हो? आप, जो मेरा शरीर है वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना सर, अब मैं ब्लैक हूं तो ब्लैक ही रहूंगा, बट ये तो जेनेटिक्स है, इसको तो नहीं कर सकता। हैंडसम होना में अपने हाथ में नहीं, स्मार्टनेस इज इन अवर हैंड। तो स्मार्ट तो बनो बाई हार्ड वर्क। दुनिया में सबको एक चीज कॉमनली मिली है, वो हार्ड वर्क। एवरीवन कैन डू हार्ड वर्क। किसी भी गोल को अगर उसने बना लिया, उसको हार्ड वर्क करके पा सकता है। पैसा कमाना, हार्ड वर्क कमाओ। नाम बनाना बड़ा, कुछ एकेडमिक्स किसी फॉर्म में अचीवमेंट चाहिए तो आप नाम बनाओ। और जितने भी लोग ग्रेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, पैसा है, 40 इयर्स 50 इयर्स में भी मैरी करते हैं, और हमारा आपका 20 साल में ब्रेकअप हो जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि हम उनके पीछे भागते, हम इन चीजों को नहीं इकट्ठा करते। हम अगर इकट्ठा कर लें वो अपने आप आपके पीछे आएंगे। सो डू दिस। और वो स्वभाव है, ऐसे डॉग का एक इंस्टिंक्ट है, आप कितना भी उसको खिलाइए पिलाइए, लेकिन कभी जरूरत पड़ गई, अगर उसकी पूंछ पर आपका पैर पड़ गया तो उसका स्वभाव है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इंस्टिंक्ट्स, एंड फ्रॉइड सेड इवन first instance is studied by William James. William James was the man who has studied the first about the instincts. And later it was studied by Bernard, who said that humans have more than 10,000 instincts are present. Later it was studied by other great psychologist McDougall. McDougall has given even instinct theory. But what about the Freud? Freud said the human have basically two instincts. One is eros, other is thanatos. Thanatos. Eros means what? Eros means life instinct. It's a life instinct. Life instinct means, in simple words, we can say, खुद जियो औरों को जीने दो। लाइफ इंस्टिंक्ट, तू भी बढ़िया मैं भी बढ़िया। सो दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट, औरों को जीने दो। टीचर हैव लाइफ इंस्टिंक्ट। द पीपल्स हु क्रिएटेड समथिंग फॉर सोसाइटी, दे हैव लाइफ इंस्टिंक्ट। टेक द प्रधानमंत्री, टेक द प्रेसिडेंट। तकलीफ होता होगा, उनको भी होता होगा, रात को 2 बजे तक जगना होता होगा। दे हैव हैप्पीनेस, बट अगेन दे हैव ईरोज। कुछ लोगों की जिंदगी बदलते,
So heroes peoples never would like to do suicide. आखिरी मोमेंट तक लड़ते हैं. I have seen some state specific peoples सड़क पे आत के सोते हैं, 1500 की नौकरियां करते हैं, 5 रुपए का छोले चावल खाते हैं, but they do not like to do suicide because they have heroes. आखिरी मोमेंट तक लड़ने की कैपेसिटी. Then what about the Thanatos? This is called death instinct. खुद मरो औरों को भी मार दो. Terrorists. The peoples who become easily sad, feel anxious, परेशान. हर चीज में कमियां नजर आती है, हर चीज में. I said many times into the class, even कई स्टूडेंट्स मेरे नाराज होते हैं. The origin of BJP is from the Thanastos, not heroes. Who has killed the other peoples. एंड आप इनके कभी कभी देखिए, संतों को देखिए, कभी कभी आप ऐसे कई संत तो अलग चीज होती. संत दे आर ग्रेट पीपल्स, बट जो उनके फॉलोअर्स हैं, दे स्टार्ट टू बिकमिंग इजिली वायलेंस, स्टार्ट टू डूइंग वायलेंस. वाई? क्यों भाई? सुनो, पेशेंस होना चाहिए. बिकॉज देयर ओरिजिन इज फ्रॉम थैनास्टोस. रीजन बीइंग थैनास्टोस. सुशांत सिंह राजपूत who suicided, क्या कमी थी? बट थैनास्टोस है जिसमें सुसाइड करने की टेंडेंसी है. थैनास्टोस इजिली डिप्रेस्ड. आधी ग्लास पानी भरा है, ये इरोज है. आधा ग्लास पानी खाली है, थैनास्टोस. इज देयर परफेक्ट ऑन दिस वर्ड्स? नो वन इज परफेक्ट. So everyone have some good things and some bad things. आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक कोई भी गवर्नर, कोई भी किसी भी गवर्नेंस के पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति वो सारी चीजें सही करेगा? Some people criticize to Nehru. Don't criticize, because every decisions have the aspects. Decision making पढ़ा ही नहीं ना. आजकल तो मार्केट में बहुत इरेशनल कॉन्सेप्ट चलते हैं भाई. पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कौन से लॉजिक्स लगाते हैं, कहां से किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से उन्होंने लॉजिक पढ़ा है, वो अनएक्सपेक्टेबल, और कोई इंटेलेक्ट उसका जवाब नहीं देता. नेक्स्ट पार्ट. तो दैट इज इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट बेसिकली टू इरोस एंड थाइनास्टोस. अब आप ढूंढो आपके अंदर क्या है, इरोस है, थाइनास्टोस. इफ यू वांट टू डू समथिंग, गेन समथिंग, सो इट मींस इरोस. छोड़ दिया, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, थाइनास्टोस. जॉली लल्बी मूवी गो टू सी, कहता 5 मिनट दे दो, आखिरी 5 मिनट में भी लड़ लूंगा मैं. दैट इज इरोस. And second part is anxiety. Anxiety is also are basically dynamic things in our life. चिंता कभी कभी आती है, और ये जान के समझ के रखो, ह्यूमन का जीवन हमेशा दोनों डायमेंशन से बनता है. Nobody will die. नेचुरल डेथ कभी भी किसी की तब तक नहीं होती जब तक उसे अपने जीवन के दोनों डायमेंशंस ना देख ले. 2 डायमेंशन कौन से? एक अच्छे वाले, एक बुरे वाले. कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में सुख ही सुख है. नहीं सर, इम्पॉसिबल. कई लोग कहते हैं मेरी लाइफ में दुख ही दुख है. नहीं सर, रियलाइज देम. सो नोबडी विल डाई. इस धरती पे कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं मरता जब तक वो जीवन की दोनों डायमेंशंस ना देख ले. इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कोई कितने सालों से चुनाव जीत रहा हो, कई सालों से सीएम रहा हो, कई सालों से वो पीएम रहा हो, लेकिन लास्ट में उसको भी चुनाव हारना ही पड़ता है. उसकी एक्सपेक्टेशन से उसको कम रिजल्ट मिलते हैं. That is means a type of
सोर्स ऑफ एंजाइटी। तो जीवन में दोनों डायमेंशन देखना ही है आप। इट मीन्स एंजाइटी, एंजाइटी कम्स ऑटोमेटिकली, दुख कह सकते हो सरल भाषा में। डायनेमिक्स बुद्ध ने कहा आएगा और समय के हिसाब से चला जाएगा। So anxiety basically three are there. One is, वो तो मैंने बता ही दिया था, neurotic, real, moral. So human have different anxieties. This is a dynamic things, comes with situations. क्या आपके जीवन में नहीं आती? सबके लाइफ में आती, आएगी, बट हाँ कभी वो बहुत ज्यादा आएगी, कभी कभी, राइट। नेक्स्ट इज about defense mechanism, defense mechanisms. So defense mechanisms even given by the Freud's daughter Anna Freud, but उसके फादर कितनी खिंचाई हो गई थी तो उसने अपनी कोई सेपरेट थ्योरी नहीं बनाई, उसने अपनी थ्योरी में ही आई मीन फादर की थ्योरी में ही उसने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ऐड कर दिया। Even this defense mechanisms used by the many psychologists like Karen Horney, Sullivan, even not only the new Freudian psychologists, even it is used by the existential psychologists like Rollo May, Erik Erikson, also used by the many other psychologists. They are basically from humanistic psychology. तो सबने भी, सबके ऊपर फ्रायड का असर पड़ा। सब, फ्रायड कोई छोटा व्यक्ति नहीं था सर, बहुत महान व्यक्ति था। उसने एक आइडिया दिया। फ्रायड was not a basically a personality, he was a school, एक अपने आप में थॉट का स्कूल है वो। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स हम अपनी सिचुएशंस अपने ईगो के अकॉर्डिंग यूज करते रहते हैं। Like sometime I used to deny, we call them to denial. बहुत सारी चीजों को आप डिनाई कर देते हो, क्यों? क्योंकि उस पर बात करना आप नहीं मानते हो। Like when the peoples were asking about the unemployment from current government, they were totally denying. Defense mechanism. Employment, सर आपने 2 करोड़ जॉब देने के लिए कहा था, that is denial, denial by the government। बात ही नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और उनके तो एमपी के स्टेटमेंट सुने, कोई बोलता हर हर महादेव, नेक्स्ट क्वेश्चन आते ही क्या बोलता है, कौन, हमने बच्चे थोड़ी ना किए। देखिए बच्चे उन्होंने कौन से किए? प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, उनके पास बच्चे ही नहीं। आप सुने होंगे शायद स्टेटमेंट्स। सो दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशंस। reaction formations and maybe displacements means one of the, कई बार हमें ईगोस आ जाता है तो हम डिस्प्लेस कर देते। जैसे एक हस्बैंड अपनी ऑफिस से बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, अब बॉस से तो लड़ नहीं सकता, वो आकर के डिस्प्लेस करता, घर में बच्चों को एक्सप्लॉइट करता, डिस्प्लेस। Projections, we call them projections. Projections means to others. It means हम अपने ईगो के लिए दूसरों को इसमें करते हैं। जैसे कि मैं क्लास में लेट आया तो मैंने बोला मेरी गलती थोड़ी ना है, ट्रैफिक जाम था, ट्रैफिक वालों की गलती। सो प्रोजेक्टिंग, बच्चे के मार्क्स स्कूल में कम आए, स्टूडेंट कैन से सर बिकॉज ऑफ सर ने ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए मार्क्स कम आए, दैट इज प्रोजेक्शंस। खुद की एक्सेप्ट एरर ना करना। अदर इज रेशनलाइजेशंस, गिविंग द रियल लॉजिक, रेशनलाइजेशंस। नेक्स्ट रिग्रेशन, अदर इज रिप्रेशन।
समटाइम्स सर्टेन थिंग्स, जैसे घर में आए और मार्क्स, किसी ने पूछा कितने मार्क्स मिले, आप सीधा बोलते हो चलो, कभी कभी रिप्रेस करते हो, आप नहीं बोलना, जवाब ही नहीं देना. इट इज सिमिलर जस्ट लाइक डिनायल. रिग्रेशन जब बोलते कहां से, राइट. सो these defense mechanisms used by everyone at every time. Even we can take a separate class on the defense mechanism. Defense mechanism well utilized into the counseling psychology therapy. It is used by everyone. मैं ही आपसे किसी चीज पे पूछूं कि आखिर क्यों नहीं हुआ, तो आप उसमें रिएक्शन फॉर्मेशंस कर सकते हो, रेशनलाइजेशंस कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, रिग्रेशंस कर सकते हो, रिप्रेशंस कर सकते हो. You can provide at least 6 to 7 answers for everything. Like प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट आपने 2 करोड़ का बोला था, सेट पकौड़ा. The people has created a big, खैर उस पे बहुत सारा एक वीडियो बना के ट्रेंड कर दिया और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उस पे हुई. We will not go in that part. But the things, these are the source to dynamics or personality. हम situations के according defense mechanisms use करते हैं. Situations के according anxieties comes in our minds, and our instinct works according to situations. Right? The next part is there. That is third part, very important part about Freud. That the third part about the Freud is, that is development of personality. Freud said that every individuals have an energy, because Freud belongs to biological determinisms. Right? Biological determinisms. So biological determinisms means our biological process determines our behavior. It means hormone determines our behavior. So the development of personality basically said by Freud, by basically a personality, हमारी जो personality बनती है, that is by a libido. What is libido? Libido. So libido is basically a biological or sexual energy. Freud said this energy is present in everyone, and this energy is a sexual energy. मतलब हर लिविंग बीइंग के अंदर सेक्सुअल एनर्जी इनबॉर्न होती है. बड़ी खतरनाक बात है बोल. दिस इज अ सेक्सुअल एनर्जी एंड प्रेजेंट इन एवरीवन. व्हाट इज सेड? प्रेजेंट इन एवरीवन. ये एनर्जी सब में पाई जाती. दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन एवरीवन. एंड इसीलिए इसे अपनी थ्योरी का नाम भी रखा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी. साइकोसेक्सुअल मीन्स आवर साइकोलॉजी ड्राइव्ड बाय आवर सेक्सुअलिटी. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी. So he said that our personality develop basically in 5 stages. Number A, oral age. Oral age means a child enjoy when he is in the 0 to 1 year sex by the oral. माउथ के थ्रू सेक्सुअल एंजॉय करता है. जैसे वो मुंह में उंगली को चूसता है तो वो उसको एक प्लेजर मिलता है. इवन छोटे बच्चे को आप कुछ भी सामने रख देंगे तो भी मुंह में डाल के चूसने लगता है. Sometimes very harmful things comes in the hand of the child. So please careful. At least इसको पढ़ के की तो सीख ही सकते हैं. 0 से 1 ईयर के बच्चों में ओरल एज होता है और वो सब में होगा सर, इफ फ्राइड ने कहा. Then B parts, that is analyze, that is 2 to 3 years. Means when in the 2 to 3 years child enjoy their sexual pleasures by the anals. इसीलिए छोटे बच्चे या टॉयलेट में बैठते हैं, बड़ी देर तक टॉयलेट करते रहते, बुलाते रहो, बहुत मजा आता है उनको.
यूरिन करते हैं तो देखते हैं कितना डिस्टेंस पर यूरिन जा रहा है. Enjoy that. So that is analysis. And the most controversial stage given by the Freud is phallic age, जिसको हम भी सुन के नाराज हुए, आप भी हो जाएंगे और बच्चे भी नाराज हो गए, फ्राइड के स्टूडेंट भी नाराज हो. What is said in this? ऐसा कह क्या दिया उन्होंने इसमें जिससे कि सारे नाराज हो गए. Each and everyone becomes to disagree with the Freud's view and said, sir, what you are saying? Basically, Freud said in the phallic age, basically boy have a separate tendency. We call them to the basically Oedipus. That is regarded as Oedipus. तो ऑडिपस की बात बोली, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. ऑडिपस मेनली प्रेजेंट इनटू द बॉय. अकॉर्डिंग टू फ्रायड, every boy want to make sexual relation with the mother, but he know that it is not possible. संभव नहीं. अगर उसने ऐसा किया तो उसको मार मिलेगी, फादर उसको बहुत मारेगा. So he have a contraception anxiety, बधियाकरण एंजाइटी होती है उसको. Freud said that person have contraception anxiety. What? Contraception anxiety. It means, अब जैसे ये बात उसने बोला तो उनके स्टूडेंट बोले, सर इतना छोटा बच्चा, आप शायद यही सोच रहे, मैं भी यही सोच रहा हूं, 4 to 5 ईयर के बच्चे में कैसे हो सकता, ऐसे कैसे होता. बट फ्रॉइड कहते नहीं, ये उसके अनकॉन्शियस में आया, लेकिन उसको उसने रिप्रेस कर दिया, छुपा लिया, इसीलिए वो अपने मां की तरफ ज्यादा लगाव रखता है. मीन्स बच्चा मां से ज्यादा लगाव क्यों रखता? बिकॉज उसके अनकॉन्शियस में ऐसा है. इट हैपेंस इन एवरीवन, फ्रायड कहता है. एक हद तक सुनने में बात लगती बड़ी अजीब सी, कैसे कैसे हो सकता है. एंड जस्ट वाइसा वर्सा इनटू द गर्ल्स. गर्ल्स में ऐसे अपोजिट्स, दे हैव इलेक्ट्रापस, electrapus is there, yeah, electra complex, we call them to electra complex. So मैं लिखता हूं तो थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, इसको नोट्स समझने के बाद आप जो भी स्पेलिंग से आप कुछ भी, क्योंकि लिखते समय खींच देता हूं मैं ऐसे, आप उसको अच्छे से समझना चाहें, सो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक द नोट्स केयरफुली, देयर इज मेंशन. So the boys have Oedipus and girls have what? Electra complex. So Electra complex means the female or the girls want to make the same relation with father, but she have again contraception anxiety. So इसलिए उसे अपनी बात को छुपा लिया, रिप्रेस कर लिया. ये बातें बोला जाता है. ये बातें तो यूनिक लगती है, अजीब लगती है, डरावनी भी लगती है, कैसे कैसे हो सकता है. बट फ्रॉइड क्लियरली सेड ह्यूमन इज बेसिकली इमोरल. इंसान जो होता है इमोरल होता है. बेसिकली ह्यूमन इज इमोरल मीन्स एक ह्यूमन में अनैतिकता पाई जाती है, वो ड्राइव्ड होता है विद द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से. एंड इफ अगर किसी के अंदर सेक्सुअल डिजायर प्रोड्यूस हो गया तो उस समय उसकी सारी मोरलिटी खत्म हो जाती. इवन द पीपल्स फॉरगेट कि आप बीच में उनके रिलेशंस है, कजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फॉरगेट ऑल द थिंग्स, ऑल द मोरल्स, ऑल द वैल्यूज गायब. बुक पढ़िए उसकी, फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स, 2-3 बुक्स फ्रॉइड की बहुत फेमस हैं. तो इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में उन्होंने मेंशन कर रखा है इस चीज को. जिस समय ह्यूमन के मन में थॉट आता, अगर ऐसा नहीं होता तो छोटे से बच्चे में क्या सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा? जीरो. उसका ऑर्गन भी ठीक से डेवलप्ड नहीं.
But the peoples who raped 2, 3 years, 4 years childs, definitely they have only one things, they are immorals. उनके पास कोई नैतिकता नहीं, इसीलिए वो कर रहे हैं, इमोरल हैं वो लोग. गेटिंग इट्स. ये भारत की परंपराओं में भी कहा गया, हिंदुइज्म में भी कहा गया. एक सगे भाई बहन, इफ दे आर एडल्ट्स, डू नॉट स्लीप इन द सेम रूम्स. क्यों? क्योंकि जब सेक्सुअल थॉट आएंगे ना, तो वो भाई बहन बाद में है, पहले वो क्या है, मेल एंड फीमेल. ओनली दे आर मेल एंड फीमेल. सो इसलिए फ्रॉइड कहता है कि आप मत करो, और अपोजिट्स अट्रैक्शंस होगा. सो दिस वाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल. और इसी में एक पॉइंट बोलता है वो फिक्सेशन. फिक्सेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सेशन? फिक्सेशन मीन्स द डिजायर or impulses which we have not satisfied up to the 5 years that we want to satisfy later years. जिन चीजों को हम बचपन में पूरा नहीं कर पाते, या हमारी जिन जरूरतों को पूरा नहीं हो पाती, उन जरूरतों को ही आगे चल करके हम पूरा करना पसंद करते हैं. जैसे किसी बच्चे के बचपन में अगर उसको अच्छी मिठाइयां नहीं मिली तो मीठा खाने का आगे बड़ा शौक रखेगा. अच्छे कपड़े नहीं मिले तो आगे कपड़े अच्छे पहनने का बड़ा शौक रहेगा. बचपन में एसी में नहीं सोया तो आगे सोने का बड़ा शौक रखेगा, रोज ड्रेस चेंज करेगा. एग्जाम्पल ले लो अपने मन में कोई फनी सा. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके मन में फिक्सेशन है. मिडिल क्लास के बच्चों में यही बेसिक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि बचपन में कई जरूरतें बेसिक वाली पूरी हो गई तो आगे कुछ फिक्सेट हो ही नहीं पाया. सक्सेस स्टोरी ज्यादातर इसीलिए कौन लोग बनाते हैं? जिनकी जो फिक्सेशन हुआ हो. फिक्सेशंस लाइक आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर स्टेट के लोग आईएएस में ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि बचपन में वो सब मिला नहीं, आगे चल के वो गेन करते हैं. सो फिक्सेशन इज अ फिनोमिना. सो द नेक्स्ट पार्ट is there, that is latency stage. Freud said in this stage, एक गलत लिख रहा हूं मैं, latency stage means in this stage child have least sexual desire. Least sexual desire means child enjoy to games, sports and many other things. इस समय academics पे फोकस करता है. This is age to 6 to 12 years. So latency stage कई सालों तक चलती है. And then the last stage according to Freud, genital stage, means a child have first homosexuality, means अपनी जैसे को दोस्त बनाना पसंद करता है, and later make friends with the opposite gender. दूसरे जेंडर्स के साथ फ्रेंड्स बनाएगा, दोस्ती करेगा, बिकॉज ही इज राइट नाउ 13 above. तो अकॉर्डिंग टू फ्रायड ओनली in the age of till the only in the age of till 13 the child develops all types of sexual characteristics. So oral first, then anal, then phallic, then latency, and last is genital. So this is a sequence. Even each stage have some abnormalities in case of it is not satisfied. जैसे अगर बचपन में ओरल की जरूरतें पूरी नहीं हुई तो हो सकता आगे वो दांत काटेगा. कई ऐसे टेंडेंसीज, दैट टेंडेंसीज विल बी डेवलप व्हिच इज बेसिकली inappropriate in them. So this is the basically development concept. Later, Freud has worked on his dream. That is, he has fourth work is dream. In the dream segment,
he has written a book on it because he has treated more than 40 years hysteria. 40 सालों तक हिस्टीरिया के ट्रीटमेंट करने के बाद फ्रायड ने तब जाकर के उसने अपनी थ्योरी दी. And he said that in our dreams, basically two types of dreams. Dreams के अंदर दो parts हैं. One is latent, other is manifest. Means हमारे ड्रीम के दो पार्ट, latent and manifest. Latent means hidden. Hidden is there. And manifest means what is directly coming in our thought. Directly. So there is direct. Suppose we are watching dreams. और ड्रीम्स के बारे में फ्रायड कहता है ड्रीम्स आर द हेवन रूट्स टू एक्सप्रेस अवर डिजायर. बिकॉज फ्रायड बिलीव्स दीज आर द हेवन रूट्स, राइट? एंड बिकॉज फ्रायड बिलीव दैट एवरी डिजायर ह्यूमन कैन नॉट सेटिस्फाई, सो सम डिजायर्स ही एक्सप्रेस थ्रू देयर हिज ड्रीम्स. तो अपनी ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी डिजायर को एक्सप्रेस करता है. हम सब अपनी ड्रीम्स में बहुत कुछ फैंटेसाइज करते हैं, देखते हैं. सो ड्रीम्स आर द हेवन रूट्स टू एक्सप्रेस अवर डिजायर. आई होप समझ में आई ना बातें आपको. सो ड्रीम्स आर हेवन रूट्स टू एक्सप्रेस अवर डिजायर. आप कभी देखते होंगे ड्रीम्स में अक्सर मिक्स्ड होती चीजें. कभी कभी हम जिस चीजों से हमें फियर लगता है कि कहां से हमारी कोई बहुत डियर पर्सन की डेथ ना हो, और सपने में हम उसी को डेथ होते हुए देख लेते हैं. हम कभी जिसको खोना नहीं चाहते उसी से हम खोते हुए सपनों में देख लेते हैं. सो लेटेंट मीन्स विच इज हिडन एंड विच इज नॉट डायरेक्टली कमिंग. जस्ट लाइक एक सपना देखा और सपने में देखा कि आपको मछली मिलने वाली है, फिश देख लिया. तो एवरी सोसाइटी हैव सम इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस. तो सपने में आपने फिश देखा, ये मैनिफेस्ट है, लेकिन उसकी हिडन मीनिंग है, दैट इज लेटेंट. अब वो हर कल्चर वाइज अलग. एंड देन मेरे कल्चर्स में, मेरी सोसाइटी में कहा जाता, अगर सपने में आप किसी को मरते हुए देख रहे हैं, सो इसका मीनिंग है कि आपने उसकी उम्र को बढ़ते हुए, इनडायरेक्टली उसका मीनिंग हो गया उसकी उम्र बढ़ जाएगी. आई डोंट नो अब क्या है, बट द थिंग्स ऐसा कहते हैं. ऐसे हर एवरी कल्चर, आई मीट टू द सेवरल कल्चर्स स्टूडेंट, दे सेड सर हमारे कल्चर में चीज. बट व्हाट अबाउट फ्रायड? फ्रायड्स बेसिकली कॉन्सेप्ट वाज अबाउट द सेक्सुअलिटीज. सेक्सुअलिटी में अगर आपने ऐसे पहाड़ पे चढ़ते हुए देख लिया, उसका मीनिंग कुछ और. किसी मड में जाते हुए देख लिया, उसका मीनिंग कुछ और. सो ही हैव सेवरल इंटरप्रिटेशंस, बट दैट इंटरप्रिटेशंस अगेन आर नॉट रिलेटेड टू यू, क्योंकि वो आपके एग्जाम में किसी से रिलेटेड है नहीं, तो क्या हम लिखेंगे, इसलिए उस पर कोई बात करना नहीं सही. राइट? सो ड्रीम्स के बारे में फ्रायड ने वर्क किया. And then fifth work is PPT. PPT means is therapy. You know, therapy, if we are going to discuss about the Freud's therapy especially, तो फ्रायड की थेरेपी में क्लाइंट्स और फ्रायड यानी थेरेपिस्ट के बीच में बहुत हम्बल रिलेशंस रहता है. इनिशियली the clients have very strong faith over the therapists. और समझो, थेरेपी तब तक वर्क नहीं करती जब तक क्लाइंट को थेरेपिस्ट पर भरोसा ना हो. और साइकोलॉजी की दुनिया में अगर देखें तो बहुत सारे थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट पर भरोसा नहीं बना पाते, इसलिए उनकी थेरेपी उतना इफेक्टिव नहीं होती और उनका पेशेंट या क्लाइंट के साथ बहुत जल्दी रिश्ता खत्म हो जाता है. आपने डेली जीवन में देखा होगा कि अगर हम थेरेपिस्ट के तौर पर किसी क्लाइंट को कोई इंस्ट्रक्शन दे दिए, हमारी बातें वो मानना चाहिए.
बट वो कई बार नहीं मानता, रीजन बीइंग क्योंकि फेथ नहीं है. दिस फिनोमिना कैन बी ऑल्सो ऑब्जर्व कि कई बार हमने देखा है कि हमें जिस पे फेथ होता, लाइक पेरेंट्स ने बोल दिया बेटे कल शर्मा जी के घर नहीं जाना, तो अब बच्चा नहीं जाता नेक्स्ट डे, बिकॉज उसके उनको ऊपर फेथ है. सो थेरेपिस्ट शुड मस्ट डेवलप, या थेरेपिस्ट मस्ट डेवलप फेथ इन द क्लाइंट्स व्हाइल दे आर गोइंग टू ट्रीटमेंट देने से पहले या देते समय उन पे फेथ होना चाहिए. बट इन टू पीपीटी थेरेपी में सम टाइम इट टेक्स 2 to 3 years, 2-3 लगते थे. रीजन बिकॉज कोई भी अपने अनकॉन्शियस थॉट को इतनी जल्दी नहीं बताएगा. नोबडी विल टेल्स इजीली अबाउट वॉट एवर इज इन हिज अनकॉन्शियस. आप मुझसे पहली बार मिलोगे, कुछ ही जानकारी मिल पाएगी, और जो आपसे बार बार मिलता, बिकॉज ह्यूमन के थॉट हैव सेवरल लेयर्स. There is a several layers of the thought that we need to break them first. So Freud did this. Freud अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय अपने क्लाइंट्स के जो अलग अलग लेयर ऑफ थॉट थे उसको वो ब्रेक करता गया, ब्रेक करता गया, ब्रेक करता गया, और वो ब्रेक करते करते एक बार उसके अनकॉन्शियस की चीजों को बाहर निकाल पाता है. सो व्हेन ही वाज सक्सीडेड टू bringing out all their unconscious things, तो वो इजीली उसका सॉल्यूशन बता सकता, उसमें कुछ ना कुछ उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकता. सो फॉर द रीचिंग टू देयर अनकॉन्शियस ही यूज सेवरल टेक्निक्स. बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं हम लोग. नंबर 1, फ्री एसोसिएशन. सो इन अ फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स, इनिशियली वी आस्क टू द क्लाइंट sit in a room just from toward the opposite direction of face. Client, मान लो थेरेपिस्ट मैं हूं, मेरे क्लाइंट्स आगे बैठेगा, बट मेरे से अपोजिट में दूसरी तरफ मुंह करके करेगा, वो भी रूम में अंधेरा कर देंगे और अच्छा रहेगा. इसका बेनिफिट क्या होगा? अब क्लाइंट को कोई भी एक्सपीरियंस हो नहीं रहा, कोई उसके आजू बाजू में है, तो वो उसके मन में जो अपना ओरिजिनल थॉट है वो निकाल सकता है. नॉर्मली हम अपने थॉट किसी को सामने वाले को देख करके निकालते हैं. वी आर सो मच डिप्लोमेटिक, वी एक्सप्रेस अवर व्यू एज पर अदर्स पीपल्स फेस रिएक्शंस. बट फ्रायड कहता है नहीं, फ्री एसोसिएशन में उसको दूसरी तरफ फेस कराओ और जो उसके मन में आता है उसको बोलने दो. सो जब वो अपने अनकॉन्शियस की सारी चीजें बोलता है, स्टार्ट टू फीलिंग रिलीफ. जगदीश चंद्र बसु ने भी इस चीज को बोला कि अगर अपने थॉट को हम रिलीफ कर देते हैं और नेगेटिव थॉट खासतौर से प्लांट को भी रिलीज कर दें, तो प्लांट की भी मौत हो जाती है, सूख जाएगा. तो नेगेटिव एनर्जी होती है. अगर किसी क्लाइंट ने अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दिया जो कि उसके अनकॉन्शियस डिजायर में छुपी पड़ी हुई, तो रिलीज कर हल्का फील होता है. मेरे यहाँ कई बार कई बच्चे आते हैं, मेरे ऑफिस में बैठते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, बहुत पर्सनल चीजें शेयर करते हो, बहुत ही पर्सनल, बिकॉज दे हैव फेथ, और उसके बाद वो अच्छा फील करके जाते हैं. बट दैट इज नॉट थेरेपी. इन द फ्राइडियन थेरेपी, initially we ask to client to express their view without any type of restrictions. So first techniques, free association. Second, dream analysis. So dream have a meanings, but dream analysis is also a technique to provide the PPT therapy. आपके सपने, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे पर्सनल सपने बताते, कई मेल फीमेल बोथ, सर मेरे सपने में ऐसा हो रहा, तो आई गिव द मीनिंग्स एज पर माई एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. Another is transference. Transference is there. Transference means therapist should develop faith in the clients
that client treats as therapist as a father, but therapist should not treat them as a son. इमोशनल रिलेशन नहीं बनाना. इट मीन्स थेरेपिस्ट वो अपने ऊपर मीन्स क्लाइंट से इतना फेथ पैदा करवा दे कि क्लाइंट सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाए. ट्रांसफरेंस टेक्निक्स इज वन ऑफ द नाइस टेक्निक. Many Moore's techniques can also applied by the many other psychologists later on, क्योंकि न्यू फ्राइडियन में कई जैसे मैलिक हेल्स एंड मेनी मोर, ओटो रैंक्स, all these psychologists has also used to develop the several therapies. And another works is parapraxis. Other work is parapraxis. So what is the meaning of parapraxis? Parapraxis means we make errors while we are doing to any task, mostly due to the unconscious region. सरल भाषा में कहें, लिखते लिखते कुछ गलत लिख देना, बोलते बोलते कुछ गलत बोल देना. Why it happened with us? Reasons being our thought basically strikes. एक ही साथ हमारे माइंड में दो थॉट पैदा होते. रिजल्टेड दैट हमारे थॉट्स आपस में टकराने की वजह से, और दो थॉट एक साथ कैसे निकल सकते हैं? पॉसिबल तो नहीं है. तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग को कुछ प्रॉब्लम होने लगती, वो बोलते बोलते गलत बोल जाता है. और मजेदार बात भारत में क्या है, अगर भारत में कहीं जुबान स्लिप हो गई, जिसे बोलते ना स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग को भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. दैट लाइक यू आर इंटेलिजेंस और इडियट. आई रिपीट दिस. भारत की पॉलिटिक्स में स्लिप ऑफ टंग को एक चुनावी हथियार के तौर पे या उसकी बुद्धिमत्ता समझदारी के टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए. रीजन, क्योंकि वो स्लिप ऑफ टंग इज अ वेरी कॉमन. ह्यूमन हैव अ हंड्रेड ऑफ थॉट. दिस इज अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जुबान स्लिप हुई और आपने आटे को लीटर में तौल दिया, कोई बात नहीं. आपने बेटी पढ़ाओ, बेटी कुछ और बोल दिया, दैट इज ओके. सो दैट बिकॉज यू आर कॉन्टिन्यूअसली डीलिंग हंड्रेड ऑफ द थॉट्स. आपके ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं. सो दैट उसके ऊपर मैंने किसी और कंट्री में पॉलिटिक्स नहीं देखी, ओनली इन इंडिया. सो स्लिप ऑफ टंग के ऊपर भारत में